नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 14 और साथ में 28 और 29 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। ठीक है, आज बैंकिंग अवेयरनेस का हमारा पूरा सीरीज़ जो है ख़त्म होने वाला है। 14 पार्ट पूरे के पूरे करवा दिए हैं मैंने, अपना कमिटमेंट पूरा कर दिया कि 500 से ज़्यादा MCQ हम करेंगे। चलिए आज का लास्ट सेशन शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। पहला सवाल, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न? आंसर है आपका पैब्लो हेनरिक्स डिकोस। कौन है? पैब्लो हेनरिक्स डिकोस। ठीक है, ये जो बैंकिंग की जो MCQ रहेंगे उसको मैं इंग्लिश में बोलूँगा और जबकि करंट अफेयर रहेंगे वो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट वॉज स्टैब्लिश इन विच ईयर? आंसर इज 1930। व्हाट इज आंसर? 1930। Next question, how many central banks and monetary authority are currently member of the BIS and have rights of voting and representation at the general meeting? Answer is 60. ठीक है, next question. Basel 3 और was released in December 2010. Basel 3 2010 में रिलीज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what does pillar 1 of the Basel 3 deal with? Answer is minimum regulatory capital requirement based on risk weighted asset. Next question, what does pillar 3 of the Basel 3 deal with? Answer is market disciplines. What is answer? Market disciplines. Next question, एक क्वेश्चन छूट हमारा, द पिलर 2 ऑफ बेसल 3 डील विथ? आंसर इज सुपरवाइजरी रिव्यू पिलर। सुपरवाइजरी रिव्यू पिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द बेसल 3 नाउ बैंक्स विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड अ कैपिटल कंजर्वेशन बफर ऑफ 2.5% ऑफ रिस्क वेटेड असेट। रिस्क वेटेड असेट, RWA का फुल फॉर्म है रिस्क वेटेड असेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the counter-cyclical buffer has been introduced with the objective to increase capital requirement in good times and decrease the same in bad times. The range of the buffer will be 0% to 2.5% of the risk-weighted asset. Next question. The highest form of loss-absorbing capital under Basel III is known as minimum common equity. Common equity. Next question, the overall tier 1 capital requirement will also increase from the current minimum of 4% to 6%. ठीक है, next question, a leverage ratio is the relative amount of capital to total asset not risk weighted. A leverage ratio is the relative amount of a capital to total asset. Next question, what will be the minimum ratio of common equity to risk weighted asset? Answer is 4.50%. 4.50%. Which among the following constitutes the three pillars of Basel 3? तो आंसर इज minimum capital requirement. Minimum capital requirement. Next question, what is the full form of IPDI? Answer is investment fluctuation reserve innovative perpetual debt instrument. क्या फुल फॉर्म है IPDI का? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट. Next question, the Reserve Bank of India has extended the timeline for full implementation of the Basel III capital regulation to 31st March 2021. क्या आएगा? 31st March 2021. Next question, RBI implemented the Basel III recommendation in India with the effect from 2013. Okay. Next question,
Who formulate Basel III guideline? Answer is BC. Next question. When Basel I guidelines were published? तो आंसर बनता है 1998. 1998 में बेसल 1 की गाइडलाइंस आई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. बेसल 2 की कब आई थी? तो 2004 में. थर्ड क्वेश्चन है, CAGR is the mean annual growth rate of an investment over a specified period of time longer than 1 year. CAGR stands for कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट. कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट. इस तरह के ही एब्रीविएशन क्या आते हैं, एग्जाम्स में आते हैं. आज का हमारा टॉपिक था बेसल और एब्रीविएशन पे. बेसल के शुरुआती 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आगे के 40 जो रहेंगे एब्रीविएशंस पे रहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. LAF is a monetary policy tool which allow banks to borrow money through repurchase agreement or repos. What is the meaning of L in LAF? आंसर बनता है लिक्विडिटी. लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ होता है क्या LAF का मतलब, तो लिक्विडिटी है L का मतलब. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ACAC फंक्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A इन ACAC? तो आंसर इज अप्रेजल, है ना. ACAC में A का मतलब क्या है, अप्रेजल. AC का फुल फॉर्म है स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी. स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी. ठीक है. अगला सवाल. स्विफ्ट प्रोवाइड्स a network that enable financial institution worldwide to send and receive information about financial transaction in a secure, standardized and reliable environment. What is the S in SWIFT? तो आंसर बनता है आपका सोसाइटी. क्या बनता है, सोसाइटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. NSDP links are introduced to provide quick access to a single comprehensive source of economic and financial data consistent with data categories and components described in the subscriber's metadata. NSDP stands for National Summary Data Page. NSDP का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल समरी डेटा पेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है. RNBC stands for Residuary Non-Banking Company. Residuary Non-Banking Companies. Residuary पढ़ेंगे इसको. Residuary Non-Banking Companies. Next question. NIBM is a part of a grand vision of giving a new direction to the banking industry in India and making the industry a more cost-effective instrument for national development. NIBM stands for National Institute of Banking Management. NIBM का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. NPA stands for नॉन परफॉर्मिंग असेट्स. नॉन परफॉर्मिंग असेट. मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी. माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन. India was one of the first in Asia to recognize the effectiveness of EPZ model in promoting export. EPZ stands for Export Processing Zone. Export Processing Zone. अगला सवाल है. DRT has been constituted under Section 3 of the Recovery of Debt Due to Bank and Financial Institution Act 1993. DRT stands for Debt Recovery Tribunals. Debt Recovery Tribunals. Next question. IBA stands for Indian Banks Association. Indian Bank Association. CAR is a measurement of banks' available capital expressed as a percentage of banks' risk-weighted credit exposure. What does mean stands for CAR? CAR का फुल फॉर्म क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो. कैपिटल एडिक्वेसी रेशो. नेक्स्ट क्वेश्चन. NPCI is an umbrella organization for all retail payment system in India. It was set up with the guidance and support to the Reserve Bank of India and Indian Banking Association. What does NPCI stands for? National Payment Corporation of India.
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PSLC आर ट्रेडेबल सर्टिफिकेट इशूड अगेंस्ट प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स ऑफ बैंक। व्हाट डज मीन सी PSLC? तो वह है सर्टिफिकेट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन MTSS is a way of transferring personal remittance from abroad to beneficiaries in India. What does MTSS stand for? Money Transfer System Scheme. Money Transfer System Scheme. Next question है IFS is a system developed by UPS to coordinate international remittance service among the partner countries. At present, the service is operational with La Poste Group, France and UAE. IFS stands for International Financial Scheme. International Financial Scheme. Next question है under OLTAS only a single copy challan is issued with a tier of portion of the taxpayer. What does OLTAS stands for? Online Tax Accounting System. अगला सवाल है सरफासी एक्ट 2002 was enacted in March 2002. What is the full form of सरफासी? तो आंसर बनता है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPDI? तो आंसर बनता है इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, इंटेलेक्चुअल परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन SDR स्टैंड्स फॉर स्पेशल ड्राइंग रेट्स। SDR का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपांड द टर्म IPCC। तो आंसर बनता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। IPCC का फुल फॉर्म क्या है? इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ठीक है, तो आंसर बनता है BSF ब्रिटिश सिक्योरिटी फोर्स। ये गलत है, बाकी सही है। ठीक है, NMA मतलब नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, SIT मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यहाँ पे ब्रिटिश सिक्योरिटी फोर्स लिखा हुआ है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज एक्रोनिम ऑफ द ISDN स्टैंड्स फॉर? आंसर है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अगला सवाल है RMSA का फुल फॉर्म क्या है? तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन LAN का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। IPDI का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इनोवेशन परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इनोवेशन परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट। तो आंसर बनता है आपका फाइनेंशियल असिस्टेंट टू फूड ग्रेन्स मर्चेंट्स। ये एक क्या है? ऑड वन आउट है। ठीक है, IDBI फाइनेंशियल असिस्टेंट टू लार्ज इंडस्ट्री, ये सही है। IDBI बैंक के बारे में। SIDBI फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्मॉल इंडस्ट्री, ये सही है। एक्सिम बैंक फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्टर्स, ये भी सही है। तो ऑड वन कौन सा होता है? FCI। ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रदान नहीं करता है, ये भंडारण करता है। ठीक है, किसका? खाद्य पदार्थों का। EVM स्टैंड्स फॉर, EVM का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCGTC? आंसर इज नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CGFMU? तो आंसर इज क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन SIDBI स्टैंड्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMMY? आंसर इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन DICGC स्टैंड्स फॉर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन RBI की एक सब्सिडरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PMSBY मीन्स प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। फुल फॉर्म ऑफ BSBDA? तो आंसर इज बेसिक सेविंग
बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ नेव का, एनएवी नेट असेट वैल्यू, क्या है नेट असेट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट एक्सपांशन ऑफ TRIM, मतलब ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन CTBT stands for, answer is comprehensive nuclear test ban treaty, nuclear test comprehensive nuclear test ban treaty। तो दोस्तों ये 590 सवाल पूरे हो चुके हैं, बैंकिंग अवेयरनेस की पूरी सीरीज खत्म हो चुकी है। तो चलिए अब चलते हैं पहली न्यूज़ के ऊपर जो कि आज की है। अर्जुन मुंडा लॉन्च 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर के लिए 2 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि लॉन्च किए किसने, अर्जुन मुंडा ने, ठीक है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा हैज़ लॉन्च 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल वेलफेयर एंड अ कोलैबोरेशन बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड आर्ट ऑफ लिविंग थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अब किसके द्वारा करे गए हैं, अर्जुन मुंडा जी के द्वारा करे गए हैं। किसके साथ पार्टनरशिप है, आर्ट्स ऑफ लिविंग जो एक NGO है उसके द्वारा ये साझेदारी। आर्ट्स ऑफ लिविंग किसका NGO है, तो ये है फाउंडेशन है, किसका है, ये है श्री श्री रविशंकर जी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन आर्मी सेलिब्रेट 74th इन्फेंट्री डे इन जम्मू कश्मीर, ठीक है। इंडियन आर्मी ने उनका इन्फेंट्री डे कब मनाया, 74वां, तो याद रखना आपको 27 अक्टूबर को मनाया, ठीक है। एवरी ईयर 27 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज अ इन्फेंट्री डे बाय इंडियन आर्मी इन जम्मू कश्मीर, नॉन बाय द निक नेम ऑफ द चिनार कॉप्स, क्या, चिनार कॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मनसुख मंडाविया इनॉग्रेट डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी, डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी किसने शुरू करी है, तो याद रखना है मनसुख मंडाविया ने शुरू करी है। कौन है, जहाजरानी मंत्री। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग इंडिपेंडेंट चार्जेस मनसुख मंडाविया हैज़ इनॉग्रेट द डायरेक्ट एंट्री DPE फैसिलिटी ऑफ वेसल्स, ठीक है। कहाँ से शुरू करिए, है ना, ठीक है, चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु से शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन लुइस आर्से डिक्लेयर्ड एज द बोलीविया प्रेसिडेंट इलेक्टेड, ठीक है, ठीक है। लुइस आर के राष्ट्रपति चुने गए हैं, कहाँ के, बोलीविया के। बोलीविया की राजधानी क्या है, ला पेजू और सुक्रे, ठीक है। करेंसी क्या है, बोलीवियानो, और बोलीविया कौन सा कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी गवर्नमेंट टू स्टैब्लिश ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन कौन बनाने वाला है, यूपी हर अपराध के लिए अलग अलग यानी कि पुलिस स्टेशन बना रहा है। यहाँ पे बिजली चोरी के लिए अलग कर दिया, वहाँ पे अभी वुमेन डेस्क हेल्प डेस्क भी बनाई थी उन्होंने, और ये एक और कर दिया उन्होंने, क्या, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस, मानव तस्करी के विरुद्ध, ठीक है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल है, और कैपिटल क्या, लखनऊ, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जी। HDFC MD CEO आदित्य पुरी रिटायर्स, MD CEO जो है HDFC बैंक के उन्होंने आदित्य पुरी वो रिटायर हो चुके हैं। टैगलाइन क्या है HDFC बैंक की, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड इंडिया US 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग बिगिंस इन न्यू दिल्ली, ठीक है, बिगिंस इन न्यू दिल्ली। 2+2 डायलॉग था तीसरे नंबर का भारत और USA के बीच, वो न्यू दिल्ली में शुरू हो चुका है, ठीक है। भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने, ठीक है। अमेरिका की तरफ से थे विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर। अमेरिका में डिफेंस मिनिस्टर को जो बोला जाता है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बोला जाता है, जबकि फॉरेन सेक्रेटरी कहा जाता है किसे, विदेश मंत्री को, ठीक है। ओम बिरला पार्टिसिपेट्स इन 6th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम वर्चुअली, ठीक है। अब क्या है, आभासी रूप में क्या हुआ है कि ब्रिक्स की 6ठी पार्लियामेंट्री बैठक में हिस्सा लिया किसने, ओम बिरला ने। ओम बिरला कौन है, लोकसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है। थीम क्या थी, ब्रिक्स पार्टनरशिप इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी, जनरल सेफ्टी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, पार्लियामेंट डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल एनिमल डे 28 अक्टूबर को मनाया गया, माफ़ कीजिएगा एनिमेशन डे, एनिमल नहीं एनिमेशन डे
फ्लो में थोड़ा गलत हो गया। इंटरनेशनल एनिमेशन डे 28 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है। ASIF का फुल फॉर्म है एसोसिएशन इंटरनेशनल डे फिल्म डी एनिमेशन। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? साइको किनोशिता साइको किनोशिता। ठीक है। ASIF के फाउंडर है जॉन हेल्स। कब हुआ था फाउंड? 1960 में। कहाँ पे? फ्रांस में, है ना, एनएससी फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेटन गुजरात एक्टर नरेश कनोदिया पास्ट अवे। रमेश कनोदिया का निधन हो गया। वो कौन थे? गुजराती एक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन गवर्नमेंट सेटअप कमेटी टू कोमेमोरेट 400th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर। ठीक है। गुरु तेग बहादुर जी की जो 400वीं बर्थ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट्स करने के लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी बना दी है। ठीक है। हाई लेवल कमेटी बना दी। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। 70 लोगों की ये कमेटी है। पीएम मोदी इनोग्रेट 4th एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी फोरम। इंडिया एनर्जी फोरम का 4था एडिशन प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या करा है? इनोग्रेट किया है। थीम क्या थी? इंडियाज एनर्जी फ्यूचर इन वर्ल्ड चेंज। इंडियाज एनर्जी फ्यूचर इन वर्ल्ड चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू फिक्स फ्लोर प्राइस फॉर द वेजिटेबल्स। फ्लोर प्राइस मतलब एक सटीक मूल्य, आधार मूल्य होता है ना। फ्लोर प्राइस मतलब आधार मूल्य, यानी कि फिक्स करने वाला पहला राज्य बना है कौन? केरला। बस क्वेश्चन यही आएगा कि इनमें से कौन सा राज्य है सब्जियों पर आधार मूल्य तय करने वाला या फ्लोर प्राइस तय करने वाला पहला राज्य बन गया तो केरला। ठीक है। द फ्लोर प्राइस विल बी 20% अबव द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द वेजिटेबल। ठीक है। चीफ मिनिस्टर कौन है केरला के? पी विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अगला सवाल है यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड लॉन्च इन तमिलनाडु। यंग एडवोकेट वेलफेयर फंड कहाँ पे लॉन्च किए गए हैं? तमिलनाडु में। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। क्वेश्चन यही आएगा अभी हाल ही में यंग एडवोकेट वेलफेयर फंड किस राज्य में शुरू किया गया है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। एडप्पी पलानी स्वामी क्या है? मुख्यमंत्री है। बनवारी लाल पुरोहित क्या है? गवर्नर है। और भरतनाट्यम वहाँ का स्टेट डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशा सीएम लॉन्च सुमंगल एंड स्टूडेंट स्कॉलरशिप वेब पोर्टल। ठीक है। सुमंगल एंड स्टूडेंट स्कॉलरशिप वेब पोर्टल कहाँ पे शुरू किया है? तो याद रखना है सुमंगल स्टूडेंट स्कॉलरशिप पोर्टल शुरू करा गया है ओडिशा में। ठीक है। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। कैपिटल है भुवनेश्वर। गवर्नर है गणेशी लाल। एयरपोर्ट कौन कौन से यहाँ पे? बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। झारसुगुड़ा एयरपोर्ट है। राउरकेला, जियोपारा और सावित्री जिंदल एयरपोर्ट। अगला सवाल है SBI साइन 1 बिलियन लोन एग्रीमेंट विथ JBIC मतलब द जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। द फाइनेंसिंग विल असिस्ट इन द गवर्नमेंट्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। काय के लिए हुआ है ये एग्रीमेंट? मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए। SBI के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। SBI फाउंड हुआ था, बना था, स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। जापान बैंक इंटरनेशनल कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर है टोक्यो में। प्रेसिडेंट है और CEO है जापान बैंक के तदाशी मेंडा। ठीक है। JBIC फाउंड हुआ था 1 अक्टूबर 1999 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया पोस्ट US पोस्टल सर्विस साइन पैक्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम। इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम के लिए इंडिया पोस्टल ने यानी कि भारतीय डाक ने US पोस्टल सर्विस के साथ क्या करा? MOU करा है। इंडियन पोस्ट का हेडक्वार्टर कहाँ? नई दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल कौन है? अरुणाधति घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है DMRC एंड SBI कार्ड लॉन्च मल्टीपर्पज स्मार्ट कार्ड। ठीक है। DMRC और SBI ने क्या करा है? मल्टीपर्पज स्मार्ट कार्ड लॉन्च करा है। ठीक है। द SBI कार्ड इन एसोसिएशन विद द दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लॉन्च द कॉन्टैक्टलेस मल्टीपर्पज कार्ड दैट कैन फंक्शन एज अ क्रेडिट कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड के तौर पर और मेट्रो स्मार्ट कार्ड के तौर पर काम करेगा। इट विल इनेबल इट यूजर टू यूज स्मार्ट कार्ड विद ऑटो टॉप अप फैसिलिटी वेन एवर द बैलेंस इज बिलो 100 रुपीज़। ठीक है। इसमें आप कितना 200 तक का रिचार्ज करा सकते हैं। ठीक है। CEO कौन है SBI कार्ड के? अश्वनी कुमार तिवारी। फाउंड हुआ था 1998 में। SBI कार्ड का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। डॉक्टर सतीश मिश्रा को मिला है डॉक्टर
तुलसीदास चुंग अवार्ड 2020? डॉक्टर सतीश मिश्रा को मिला है डॉक्टर तुलसीदास चुंग अवार्ड 2020। क्वेश्चन यही आएगा, डॉक्टर तुलसीदास चुंग अवार्ड किसे मिला है? तो डॉक्टर सतीश मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स ऑथर्ड बाय सरबप्रीत सिंह, है ना। सरबप्रीत सिंह ने क्या लॉन्च करी है बुक और लिखी है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट, ठीक है, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट ऑथर बाय, है ना, सरबप्रीत सिंह। अगला सवाल है, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू हैज लॉन्च वर्चुअल फेस्टिवल ऑफ परंपरा सीरीज 2020 नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस ऑर्गेनाइज्ड बाय द नृत्य तरंगिनी इन पार्टनरशिप विद द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। वाइस उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने क्या लॉन्च करा है? वर्चुअल फेस्टिवल परंपरा सीरीज शुरू करा है, ठीक है। किसके सहयोग से करा है ये? यूनाइटेड नेशन के सहयोग से करा है। किसने? नृत्य तरंगिनी ने। हेडक्वार्टर का है यूएन का न्यूयॉर्क में। जनरल सेक्रेटरी कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी 28 और 29 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स की न्यूज़। साथ में बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 14 बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज खत्म हो चुकी है, ठीक है। मंडे से मैं लेकर आऊँगा जो रिवीजन पार्ट रहेगा अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स का, वो लेकर आने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल अलग से जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई है वो अलग करेंगे हम, बुक्स एंड ऑथर अलग करेंगे, सब चीज़ें हम पार्शली करेंगे, ठीक है। और फिर मैं लेकर आऊँगा मंगलवार को अक्टूबर का पार्ट 1 जो MCQ फॉर्म में रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।